Hello kids, today we will study chapter number 11, Symmetry and Patterns. Kids, in this chapter, we are going to study about symmetry and patterns. Now, let's start the chapter. First of all, look at this picture. On here, Suraj and Sakshi are celebrating Diwali. दोनों ही सूरज भी और साक्षी भी दोनों दिवाली सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं. दे आर एक्साइटेड. ऑब्जर्व द दिवाली रंगोली एंड कंप्लीट द पैटर्न. वो एक्साइटेड हैं दिवाली की इस ऑब्जर्व करें रंगोली को और उसको कंप्लीट करने के लिए. नाउ किड्स, व्हाट यू विल डू? Look at this picture of rangoli and you will complete this rangoli by the same color. Now on here is blue, on here is green, and that will be go yellow. On here is green color, same green color on here, and this you will do yellow color. So same pattern you will complete this rangoli. Now let's start. Topic is symmetry. What is symmetry, kids? A shape or an object has symmetry. कोई भी shape और एक object symmetry है if it can be divided into two identical pieces. अगर वो divided हो सकती है two identical pieces में. Kids, draw the following shapes on a sheet of paper and cut them out along the boundary. Fold each figure along the dotted line. What do you see? Look at this. There are some different shapes. When you will divide it into dot dot dot, that आप क्या देख सकते हैं? Here you can see that the two parts lie exactly one above the other as shown below. आप देख रहे हैं जैसे ही ट्रायंगल पे डॉटेड किया, ऑन हेयर रेक्टेंगल पे किया, ऑन हेयर सर्कल पे किया, तो ये डिवाइडेड हो गए हैं टू इक्वल पार्ट्स में. दैट इज कट करने के बाद ये फोल्डेड पार्ट हो गया, इसका ये फोल्डेड हो गया रेक्टेंगल का, एंड दैट इज सर्कल. नाउ किड्स, place each pieces on the table and then place a mirror along the dotted line. जब आप इनको पेस्ट करेंगे each pieces को टेबल पर, तो then place a mirror along the dotted line. तो look at the mirror. आप जब मिरर से देखेंगे तो what do you observe? By looking in the mirror. तो जब आप मिरर से देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ पर clearly the figure inside एंड आउटसाइड द मिरर आर द सेम. दोनों ही फिगर जब आप चेक करेंगे दैट विल बी सेम एंड द टू टुगेदर फॉर्म द कंप्लीट शेप वी हैड मेड बिफोर. और ये बिल्कुल कंप्लीटली शेप है हमारी जो कि हमने बनाई है पहले ही. नाउ such figures which can be divided into two exactly identical parts are said to be symmetrical. तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि two exactly identical parts will be symmetrical अगर वो बिल्कुल equal हैं. Now about the dividing line. The dividing line, ये जो dividing line होती है जिससे two identical parts equal होते हैं, that will be the line of symmetry. Now kids, on the base we will start exercise 11.1. First question. Pick the figure which are divided into two mirror halves बाय द डॉटेड लाइन. आपको उस पर टिक करना है जो बिल्कुल टू डिवाइड कर देगी इक्वल हाफ्स में. तो लुक एट दिस. इस डॉटेड लाइन से ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो ऑन हेयर विल बी क्रॉस. नाउ व्हेन यू विल ड्रॉ डॉटेड लाइन you can see that is not equal halves, that will be also cross. On here value you will draw dotted line, you can see that is the equal halves, that means on here will be right. As it is remaining question you will do yourself. Now second question, draw the other halves of the following along the dotted line. अब आपको other halves को ड्रॉ करना है. You know that is a line of symmetry. इसका मतलब क्या है? जितना हाफ पार्ट इधर है उतना ही एज इट इज इधर होगा. तो व्हाट यू विल डू, ए पार्ट ड्रॉ दिस लाइन एज इट इज
एंड आफ्टर दैट नीचे, फिर इधर, फिर नीचे, एंड meet this. So that will be the other halves. As it is remaining question, you will do yourself. Now, second topic is patterns. A pattern is a repeated arrangement of numbers, shapes, colors, and so on. Pattern क्या होता है? एक repeated arrangement होता है numbers का कह दीजिए, shapes का कह दीजिए, colors का, and so on. और कुछ भी हो सकता है. The pattern can be related to any types of event or object. पैटर्न जो होता है वो रिलेटेड हो सकता है किसी भी टाइप के इवेंट के, किसी भी टाइप से और ऑब्जेक्ट से. पैटर्न्स आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. पैटर्न हमारे चारों तरफ कहीं भी है. ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो. आप जैसे इनको ऑब्जर्व कर लें. दैट इज एनिमल, दैट इज लीफ, दैट इज विंडो ग्रिल एंड दैट इज क्लॉथ. तो टाइप्स ऑफ पैटर्न देखें, इसमें रिपीटेड चल रहा है एक ही तरीके का. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. रिपीटिंग है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, चेंजिंग डायरेक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, पैटर्न्स एक्सेट्रा. आप देख रहे हैं कि कितने टाइप से ये पैटर्न्स जो है ना रिपीटेड हो रहा है. तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड लर्न रूल्स. आप इसको ऑब्जर्व करें और जो इसके रूल्स है उसको लर्न करें. रिपीटिंग पैटर्न, दैट इज फर्स्ट ए. देखिए यहाँ ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर. तो आप क्या देख रहे हैं? अ ट्रायंगल इज फॉलोड बाय अ स्क्वायर इन द पैटर्न. यहाँ पर ट्रायंगल स्क्वायर, ये हमारा पैटर्न चले जा रहा है. तो इंक्रीजिंग पैटर्न इन नंबर. आप यहाँ पर इंक्रीजिंग पैटर्न देखिए, पहले ए सिंगल है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स एंड फिर अगेन 5 टाइम्स. तो रूल ये क्या हो गया? ए इज एडेड ईच टाइम. हर एक टाइम पर ए क्या हो रहा है? एडेड हो रहा है. नाउ इंक्रीजिंग पैटर्न इन नंबर एज वेल एज इन साइज. अब की बार पैटर्न कैसा है? अकॉर्डिंग टू साइज के. देखिए पहले एक सर्कल है, उसके बाद बड़े वाला उसी के ही सेंटर से दूसरा आ गया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. तो सर्कल जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है सेम सेंटर से. तो रूल क्या हो गया? वन सर्कल ऑफ बिगर साइज इज एडेड ईच टाइम. एक सर्कल बिगर साइज का ऐड होता जा रहा है. नाउ इंक्रीजिंग पैटर्न इन साइज. अब की बार साइज का देखिए, पहले ये स्मॉल है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे भी बड़ा हो गया. तो क्या हो गया? साइज ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज ईच टाइम. अब की बार साइज जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है हर बार. नाउ डिक्रीजिंग पैटर्न. अब देखते हैं हम डिक्रीजिंग पैटर्न क्या होता है नंबर का. देखिए देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स. फिर एक डिक्रीज हो गई, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स. फिर एक और डिक्रीज हो गई, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 5 हो गई. तो रूल क्या हो गया? 1 डॉट इज सब्ट्रैक्टेड ईच टाइम. एक डॉट जो है ना वो सब्ट्रैक्टेड हो रही है. डिक्रीजिंग पैटर्न भी होता है, जैसे सबसे पहले दैट इज द स्क्वायर ऑफ बिग साइज, फिर इससे स्मॉल साइज, फिर उससे भी स्मॉल, फिर इससे स्मॉल, फिर और स्मॉल हो गया. तो साइज ऑफ ए स्क्वायर इज रिड्यूस्ड. हर बार क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है. चेंजिंग डायरेक्शन पैटर्न. अब डायरेक्शन पैटर्न की बात करें, देखिए पहले एम जो बना हुआ है ये अपर डायरेक्शन में है, फिर दैट इज कम ऑन हेयर, दैट इज राइट डायरेक्शन में आ गया, फिर ब्लो आ गया, फिर राइट से लेफ्ट में आ गया, फिर दोबारा अपर, फिर राइट, फिर ब्लो, फिर लेफ्ट और फिर अपर हो गया. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? चेंज इन डायरेक्शन एंड रिपीटेशन इन द पैटर्न. चेंज हो रही है. यू कैन से इज अकॉर्डिंग टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. इसके अकॉर्डिंग यू कैन से ऑल्सो दिस पैटर्न. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न देखें. कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न में हम देखेंगे कि रेक्टेंगल के अंदर ये डॉट कहाँ है. ये इस कोने पे है, फिर इधर ही ये 2 आ गई, फिर उसके बाद में एक और, दैट इज द शेप ऑफ स्क्वायर, उसमें 2 हमारी डॉट हैं. फिर रेक्टेंगल हो गया, उसमें हमारी 3 डॉट्स हो गई, फिर स्क्वायर आ गया, उसमें 4 कंप्लीट हो गई, फिर दोबारा रेक्टेंगल आ गया 1 डॉट से. तो रूल क्या हो गया? पैटर्न फॉलो रिपीटेशन, चेंज डायरेक्शन एंड इंक्रीज इन नंबर में भी. नाउ नंबर पैटर्न देखते हैं. Above rules can be applied for a number pattern. How? That is 2 4 6 8 10 12.
दैट इज 5, 8, 11, 14, 17, 20। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी डिजिट्स आई हैं स्किप हो रही है, 2 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, एंड यहाँ पर 5 3 8, 8 3 11। तो किस प्लस 3 जो है ना हर बार ऐड होता जा रहा है, और यहाँ पर क्या ऐड होता जा रहा है, 2 ऐड होता जा रहा है। तो दैट इज द पैटर्न कि हर 3 ऐड करके कि क्या नंबर आ रहा है वो पैटर्न में हम आगे लिखते हुए चलेंगे। नाउ सी एज इट इज, आप देख रहे हैं 50 के बाद 45 डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर 40, फिर 35, हाउ मच इज डिक्रीज, दैट इज -5। नाउ इन डी में 10 के बाद 20, 30, 40, तो दैट इज +10 एज इट इज। नाउ टाइलिंग पैटर्न भी होता है ऐसे ही। लुक एट द पैटर्न शोन बाय द टाइल्स ऑफ वॉल एंड फ्लोर्स बिलो। आप देख सकते हैं कि ये टाइल्स हैं, एक टाइल्स के साथ सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से चल रही हैं। आज इट इज ये इस तरीके की टाइल्स हैं जो इस शेप में लगी हुई हैं एक दूसरे से, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये दैट इज द लीव्स शेप्स। Now these patterns are made by using shapes that fit into each other, जो कि एक दूसरे से फिट है। Now these types of patterns are called tessellation। ये क्या कहलाता है इस टाइप का, that is tessellation। On the base we will do exercise 11.2, that is first question, what will come next in the following pattern, tick write the correct option। kids, यहाँ पर कुछ पैटर्न गिवन है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई आगे आने वाला पैटर्न होगा, आपको ऑब्जर्व करना है ये होगा या ये होगा, जो भी होगा उस पर टिक करना है। तो पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सर्कल के अंदर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकली। तो आपकी बार कौन सी आएगी, दैट विल बिकम हॉरिजॉन्टल। तो यू विल टिक ऑन हियर। नाउ दैट इज द फर्स्ट ए। नाउ बी देखें, दैट इज द डायमंड शेप। इन डायमंड शेप सर्कल है पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में, फिर ब्लो, फिर राइट, फिर अपर, फिर लेफ्ट से स्टार्टिंग डायमंड में, फिर ब्लो, ब्लो के बाद में दैट विल बी कम लेफ्ट से राइट पर, दैट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट आंसर। As it is remaining you will do yourself। Second देखें, observe the following pattern and extended। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना एंड नेक्स्ट बताना है क्या होगा। पहले दैट विल बी अपर डाउन, अपर, फिर क्या होगा, दैट विल बिकम डाउन। यू विल डू दिस लाइक दैट, दिस टाइप, एंड fill this circle also। Now that is blow and after that will become upper, like that this। Now B 100, 110, फिर 100, फिर 110, and after that will become 100 and then 110। Now remaining you will do yourself। Third देखें, that is digits। Identify the rule and fill in the blanks। First is 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, कितने का जंपिंग चल रहा है, +4। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 is 21, 21 + 4 is 25, 25 + 4 is 29। That is the first question। Now B देखें, 20 के बाद 70 आ रहा है, जंपिंग कितने की हुई है, स्किप किया, +50, फिर उसके बाद 120 आ गया, अगेन +50, फिर 170 आ गया, अगेन +50। तो 170 में +50 करेंगे, दैट विल बिकम 220। 220 में +50 करेंगे, दैट विल बिकम 270। 270 में +50 करेंगे, दैट विल बिकम 320। As it is remaining question, you will do yourself। It's chapter finish। I hope you understood very well this chapter। Now we will meet in next chapter। Thank you।